you will never have enough content to answer every question. Does that mean that you will leave your answers in the examination hall? No, sir. कि भाई ये सब कुछ हर जगह अप्लाई हो जाएगा. I'm not saying that. Okay, I'm not saying that everything will be repeated everywhere. What I'm saying is that out of these more than a dozen points, even if you are able to link 5 to 6 points to a particular kingdom, you will be sorted ना. Understood? अगर पूछता है contribution of XYZ to architecture, then what can we write? सबसे पहले तो वही आ जाता है. So this is how you move ahead with the architecture वाला portion. So you'll get a lot of things to write. कम से कम 10 pointers इसमें भी हो गए हमारे पास. Read the question at least, लिख रहा हूँ, at least 3 times. At least 3 times. और अगर 5 बार पढ़ लोगे तब तो चैंपियन ही बन जाओगे. That in the introduction itself you have to always address the key to the question. जो question है वो पूरा का पूरा introduction में address करना पड़ेगा. Estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Now, the word given here is estimate. अगर यहीं पे word क्या होता है evaluate, तो डिफरेंट हो जाता आंसर. जब वो होगा तब बताऊंगा. अभी के लिए एस्टिमेट कर लेते हैं. कौन मान लो जो ये आइडियल आंसर, जो ये मॉडल आंसर्स हैं, दिस हैव बीन रिटन बाय समबडी हु स्कोर्ड 100 एंड क्या 14 वगैरह इन जीएस1, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स. अब इस इंसान ने जो लिख दिया उस पे मेरा अपना क्या ओपिनियन है, दैट आई विल ऑलवेज गिव इवन इफ इट मींस गोइंग बियॉन्ड एंड इवन समटाइम्स गोइंग अगेंस्ट द मॉडल आंसर. मेक एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन. एग्जांपल, यू विल सी टॉपर्स who have written 12-13 points in a 10 marker by making points out of examples only. तो कभी चूकना नहीं है उससे. ठीक है, don't worry about that. What we understand, we conquer. So the question number 1 that I gave to right yesterday was, though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. है ना? ये क्वेश्चन आया था 2024 में, 2024 में, 15 मार्कर. Okay. Before discussing this question, I would like to bring your attention to something else. Look at this question here that came in 2013. इस question को देखो एक बार. Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. Discuss. Go back to this particular question now. Cholas had the highest achievements in domains of art and architecture. Cholas represent high watermark in temple architecture. समझ में आया? Got it? किस तरीके से चेंज हुआ क्वेश्चन एंड कितना ज्यादा सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आया. अंडरस्टूड? सो सी हाउ द क्वेश्चन हैज शिफ्टेड and how the question has still stuck to certain similar things. So that is why answer writing, P by Qs, these things are important. Okay, let us look at the answer to the question that I gave you to write yesterday. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. इस पे comment करता है. तो अब जैसे मैंने यहाँ पे, हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि इंट्रोडक्शन कीवर्ड ऐसे लिख के बताया, आपको लिखना नहीं है वो, है ना. यू डोंट हैव टू राइट कि ऐसे करके इंट्रोडक्शन है. हाँ, इट्स द सेम क्वेश्चन. वेरी गुड. इट्स द सेम क्वेश्चन, जस्ट वर्डिंग्स आर डिफरेंट. वेरी गुड. सो यू डोंट हैव टू राइट दिस इन द आंसर, है ना. ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए बता रहे, समझाने के लिए बता रहे. सो द चोला पीरियड व्हिच स्पैन फ्रॉम अबाउट 9 to 13th century सो मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम एटसेट्रा which has left a lasting legacy on Indian civilization. ठीक है, got it. Now this is a type of introduction. ये सबको समझ में आया क्या है इसमें इंट्रोडक्शन में? एक तो टाइमलाइन दे दी उनकी, एक उनका बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, और एक बता दिया कि उनकी लेगेसी भी थी. तो जो जो भी उसने पूछा था हमने सब कुछ एड्रेस कर दिया. नाउ बट वी नीड सम एक्स्ट्रा एज एज वेल, है ना. हमें कुछ एक्स्ट्रा एज भी चाहिए, तो मैम ने आपके लिए वो एक्स्ट्रा एज भी ऐड किया है. क्या ऐड किया है, पढ़ो उसको. चोलोस और नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड. हाउ? ये दिया था ना इसने क्वेश्चन में. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आज एक बात लिख लो अपने कॉपी पे, जहां पे भी अपना कॉन्कर करना शुरू किया ना, राइट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द कॉपी. देयर इज दिस इज माय फर्स्ट एवर, जो सबसे पहली मैं चीज बताता हूँ आंसर राइटिंग में. सबसे पहली, रीड द क्वेश्चन एट लीस्ट, लिख रहा हूँ, एट लीस्ट 3 टाइम्स. एट लीस्ट 3 टाइम्स. और अगर 5 बार पढ़ लोगे तब तो चैंपियन ही बन जाओगे. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दो the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. Comment. Now you have to understand one thing. जो बच्चों ने सबसे ज्यादा गलती की आंसर लिखते टाइम, क्या गलती की है सबसे ज्यादा आंसर लिखते टाइम? दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉमेंट इज गिवन फॉर दिस एंटायर स्टेटमेंट. ये सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं दिया हुआ, बट स्टूडेंट्स हैव ओनली फोकस्ड ऑन द हाईएस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द चोला इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. समझो बात को. ओके, व्हाट इज इट सेइंग? दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर, yet their name is still remembered with great pride. ये भी तो इसी स्टेटमेंट का पार्ट है ना. बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बिल्कुल सही है. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, yet their name is still remembered with great pride, ये भी हमें एड्रेस करना है. टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो. समझ में आया सबको जो मैं बोल रहा हूँ? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सो टू एड्रेस दिस, लेट्स हैव अ लुक. चोलास आर नो मोर, yet their name is still remembered. हाउ? द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टॉक्ड अबाउट Uttar Marur
inscription of the Parantak I to underscore India's democratic traditions and the installation of Chola era Sengol. इसको highlight कर दो. In the new parliament building showcase the marvels of those times. बात समझ में आई? Understood? So what are we trying to do? We are trying to tell how the Cholas were so great that their name is still remembered with great pride, bhai. So even if, so the best introduction would be to mix both of these. इन दोनों को mix कर दो. कैसे mix करोगे? Pick up this line from here. Chola period with Chola period spanned from 9th to 13th century CE. But their name is still remembered as recently seen when Honorable Prime Minister of India talked about Uttarmerur, inscription of Prantak I, and अगर लंबा हो रहा है तो छोटा कर दो, and the installation of Chola era Sengol in the new parliament building. ठीक है? Let's teach you the breakdown of the thing. 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स. इस 250 को 10 से डिवाइड कर दो. डिवाइड 250 बाय 10 कितना हुआ? 25. इस 25 में प्लस माइनस 5 लिख दो. This is the range of your introduction. 20 to 30 words at max in a 15 marker. बात समझ में आई? And similarly, when you talk about a 10 marker, तो 10 marker के कितने words हो गए? 150 words divided by 10, you get 15 plus minus 5. What do you get? 10 to 20. This is for a 10 mark. बात समझ में आई? So this is how we can proceed. So now let us have a look कि इस introduction को हम कितने words में use कर रहे हैं. Chola period spanned from 9th to 13th centuries. ठीक है? But their name is still remembered as seen recently, ever as seen when Prime Minister of India talked about Uttarmerur inscription and the Chola era Sengol installation in the new parliament building. So approximately nearly 30 words के आसपास में आ गया. Understood? Got it? So in the introduction itself you have to address. Introduction का क्या meaning होता है? That in the introduction itself you have to always address the key to the question. जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में एड्रेस करना पड़ेगा. Only then will the examiner know that you have actually understood the question. Introduction is the first impression, na, ladies and gentlemen. So that is how you bring it down. Everybody clear? सबको समझ में आया? Now we can move ahead. इसने दो चीजें बोली थी वो मत भूल जाना. Again, जैसे मैंने बोला, read the question again and again. जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो. Domain of art and architecture दो दिए हैं ना, तो दोनों को अलग अलग एड्रेस करेंगे. तो let us first address the domain of art. Then we'll address the domain of architecture. बात समझ में आई? Now always make your subheadings. तो introduction के बाद subheading बनेगी पहली. कैसे होते हैं आंसर राइटिंग? बेसिक समझाता हूँ. देखो, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन को मैंने आपको बता दिया. इंट्रोडक्शन कैसे होगा? टोटल वर्ड्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 5. ठीक है? इतने का इंट्रोडक्शन. क्या हमने सीखा इंट्रोडक्शन के बारे में? एड्रेस द एंटायर कोर क्वेश्चन, एंटायर कोर ऑफ क्वेश्चन. समझ में आया? देन इसके बाद क्या आता है? तो इसमें क्या ऐड करना है आपको? जैसे हमने आज क्या सीख लिया? एक पर्टिकुलर पॉइंट सीख लिया, टाइमलाइन, है ना. अगर हिस्ट्री का है तो हमने एक अप्रोच क्या सीखा आज इंट्रोडक्शन का? टाइमलाइन प्लस रीसेंट एग्जाम्पल. अंडरस्टूड? बात समझ में आई? देन यू मूव टू द मेन बॉडी. ये लिखते जाना, ये डेवलप होता जाएगा, ऐसे टेम्पलेट डेवलप हो जाएंगे पूरे. नाउ लेट अस कम टू द मेन बॉडी. सो मेन बॉडी में सबसे पहले क्या बनती है? बनती है हेडिंग्स. ठीक है? सो लेट अस लुक एट हेडिंग्स. हेडिंग नंबर 1 बनाना है, मान लो हमें ना हेडिंग नंबर 1 बनानी है. सो व्हाट विल बी द हेडिंग 1? Now you come to the main part of the question, that they had highest achievements in the domain of art and architecture. अब ये main part आपने ऊपर वाली लाइन एड्रेस कर दी. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन था, you have addressed that in the introduction. Now you come to the second half of the line, which is the main line, which is the main core body. Highest achievements in the domain of art and architecture. So let us have a look at the first heading, achievement in the domain of art. बात समझ में आ गई? इसमें चाहो तो highest word भी ऐड कर सकते हो. Clear? Now whatever you write, always make sure that you are writing in points. मतलब point number डाल के, point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5. Similarly, when you write the achievements in the domain of architecture, again point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, and 1 diagram आ गया आपका. Examples अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखने हैं, and then we'll come to the conclusion part. बात समझ में आई? So ना 10 marker, if you are writing 9-10 points with a lot of examples, that is more than enough. ठीक है? Let us have a look at the answer now. Achievements in the domain of art. तो सबसे पहले bronze sculptures. दो या फिर थ्रू द यूज ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक वर हाईली डिटेल्ड, डायनामिक एंड स्पिरिचुअली एक्सप्रेसिव. जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाते थे वो कैसे बनाते थे, है ना. आइकन ऑफ नटराज, लॉर्ड शिवा इज कॉस्मिक डांसर, बिकेम सिंबॉलिक ऑफ इंडियन आर्ट ग्लोबली फॉर द ग्रेस, बैलेंस एंड स्पिरिचुअल डेप्थ. डिपिक्शन ऑफ डिवोशन, स्कल्पचर्स ऑफ गॉड विद ह्यूमन फीचर्स रिफ्लेक्टेड बोथ डिवोशन एंड टेक्निकल मास्टरी. तो अब देखो इसमें भी कुछ चेंजेस करता है. लेट्स चेंज द आइडियल आंसर्स आल्सो. जैसे मान लो आपने ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर लिखा है यहाँ पे. ठीक है? ठीक है. जैसे मान लो सबसे पहले ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास.
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग दैट यू आर राइटिंग हियर इज ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनका हाईएस्ट अचीवमेंट था इन द डोमेन ऑफ आर्ट, तो ये ब्रोंज स्कल्पचर से लिख के मत यहाँ पे एंड कर देना। व्हाट डू यू डू, यू पुट इट लाइक दिस, ब्रोंज स्कल्पचर हाईली डिटेल्ड, ये जो लिखा है ना यहाँ से, हाईली डिटेल्ड डायनामिक एंड स्पिरिचुअली एक्सप्रेसिव, ये यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। ब्रोंज स्कल्पचर लिखो वर्ड, उसके सामने ये पर्टिकुलर चीज ऐड करो, एंड देन यू कैन राइट एग्जाम्पल में ये यूज ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। बात समझ में मैंने क्या बोला, ये ब्रोंज स्कल्पचर लिखा, ये आपकी बन गई क्या, देखो ये है गई, ये हो गई, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ पेज, बहुत ही खोज खोज हो गया। ये हो गई आपकी हेडिंग, ठीक है, हेडिंग नंबर 1। अब इसके अंदर हम बनाएंगे सब हेडिंग मान लो, फिर आर्ग्यूमेंट मान लो, फिर पॉइंट मान लो। सो दिस इज 1, है ना, ब्रोंज स्कल्पचर। अब इसके सामने क्या लिखोगे, हाईली डिटेल्ड डायनेमिक एंड स्पिरिचुअली एक्सप्रेसिव, ये इसके सामने आ गया, है ना। देन यू राइट लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक एज एन एग्जाम्पल अंडर दिस। देन मान लो आप सेकंड लिख रहे हो, द आइकन ऑफ नटराज, ठीक है। Here you have to see that how it became a symbol of Indian art globally for its grace, balance, and spiritual depth, right? And then, as an example, what do you write? That it was also displayed, if it was also symbolized in the G20 as an example. ठीक है. Simultaneously, in other example, you can also write that it is also depicted in the CERN facility. बात समझ में आई? Then third became डिपिक्शन ऑफ डिवोशन, बट हाउ डू वी शो कि जो डिपिक्शन ऑफ डिवोशन है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है डोमेन ऑफ आर्ट का, यू डू दैट बाय शोइंग दिस दैट इट रिफ्लेक्टेड बोथ डिवोशन एंड टेक्निकल मास्टरी, ऐसे करके, ठीक है। देन पैटर्नेज एंड कल्चरल फ्लरिशिंग, ये तो अपने आप में चलो एक एक्सप्रेसिव हो गया, बाकी यहाँ पे लिख सकते हो चोलास रूलर वर ग्रेट पैटर्न्स, इसके सामने इतना बस। देन इन्फ्लुएंस आउटसाइड इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर इन प्लेसेस लाइक कंबोडिया, इंडोनेशिया आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द चोलास, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि हमें कैसे इसका इन्फ्लुएंस इंडिया के बाहर भी है। देन वी कम टू द अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर, रिफाइनमेंट ऑफ द द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर, जो द्रविड़ा था उसका जेनिथ आ गया यहाँ पे, अच्छा लिख ही दिया आगे, स्टाइल रीच्ड इट्स जेनिथ, यहाँ पे टावरिंग विमान आ गए, ग्रैंड गोपुरम आ गए, एक्सटेंसिव मंडप आ गए, और इन सबको मैं तो कह रहा हूँ अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, इन सबको अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, है ना, कि कैसे टावरिंग विमान विमान आ गए, देन सेकंड में लिखो ऐसे ग्रैंड गोपुरम आ गए, एक्सटेंसिव मंडप्स आ गए। देन एज एन एग्जांपल यू कैन राइट हियर द बृहदेश्वर टेम्पल, द बृहदेश्वर टेम्पल, बात समझ में आई सबको। एंड देन यू राइट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, द द्रविड़ा टेम्पल, है ना, इसमें बताओ कि कैसे दिस इज द शिखर, दिस इज द विमान, दिस इज द गर्भगृह, दिस इज द मंडप, दिस इज द गोपुरम, ऐसे करके आपको यू हैव टू राइट इट डाउन, बात समझ में आई। So always, whenever you can make a diagram, make a diagram. Yeah, you can draw the diagram of Nataraj also, but that will be very tough for you to do ना, वो अच्छा दिखेगा नहीं, तो टाइम लग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम टेम्पल आर्किटेक्चर बना के रखते हैं। देन कार्विंग्स एंड डेकोरेशंस ऑफ टेम्पल्स, हाईली इंट्रिकेट कार्व्ड व्हील चैरियट, एग्जांपल आ गया। द्वारपाल given permanent place in Dravida temples, towering monolith शिखरा, octagonal शिखरा of गंगाईकोंडा चोलापुरम temple, तो ऐसे करके क्या है, argument example, argument example, argument example, understood, got it। then what you can do is you can make an extra heading here, एक extra heading बनाओ यहाँ पे। what will be that extra heading about, किस बारे में होगी, it will be about this particular part of the question, yet their name is still remembered with great pride, इसको आप further लेके जा सकते हो, है ना, इसको आप फर्दर लेके जा सकते हो, यू कैन यूज इट फर्दर टू टेल दैट नेम स्टिल रिमेम्बर्ड, यहां पे लिख सकते हो प्रांतक वन इंस्क्रिप्शन, सामने लिखो डेमोक्रेसी, फाइनेस्ट एग्जाम्पल या फिर अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, सेंगोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नटराज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, उर्स द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक। अब ये भले रिपीटेटिव लगे, बट इवन इफ द एग्जामिनर हैज मिस्ड इट इन द फर्स्ट पार्ट, दे विल श्योरली लुक एट इट हियर। यस, सिंगल के सामने आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, लिख सकते हो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, लिख सकते हो, इसके सामने लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ पावर एंड पॉलिसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पावर एंड पॉलिसीज, है ना। नटराज G20 भारत मंडप, यहां पे लिख भी सकते हो कि G20 वन वर्ल्ड वन अर्थ, ठीक है, उसके इसके लिए नटराज वन यूनिवर्स, गॉट इट, अंडरस्टूड, बात समझ में आई। एंड देन टू कंक्लूड यू कैन जस्ट पुट इट सिंपली
that yes, the Chola period has been rightly referred as the golden period of South India and it marked the peak of temple architecture in India. ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो. अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इफ यू लुक एट दिस, तो यहीं से चीजें मिलेंगी ना. चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. तो ये साउथ इंडिया वाला लिख दिया पॉइंट हमने, द्रविड़ा स्टाइल, ये वाली सेंचुरी, ये वो. फिर ये कैसे हाई वाटर मार्क था, उसमें हमने बताया कि ये द्रविड़ा को पीक पे लेके आ गए, बहुत सारे यूनिक स्कल्पचर्स मिले, कार्विंग्स मिली बहुत सारी, द्वारपाल मिले, मोनोलिथिक शिखराज मिले, है ना. फिर हमने इसको बेसिक से कंक्लूड कर दिया कि इसमें डायग्राम आ जाएगा, जो पीछे डायग्राम था वो डायग्राम आ जाएगा इसमें. अंडरस्टूड, क्लियर. सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, दैट हमने इंट्रोडक्शन किया. इंट्रोडक्शन में टाइमलाइन प्लस एग्जाम्पल देके वी डेल्ट विद द क्वेश्चन, डेल्ट विद द कोर क्वेश्चन, ठीक है. देन ये हो गया इंट्रो. फिर उसके बाद वी केम टू द मेन बॉडी. मेन बॉडी में हमने सबसे पहले क्या किया, वी मेड अ हेडिंग, हेडिंग 1, है ना. ये हमने डील किया इसमें आर्ट से, ठीक है. आर्ट के अंदर हमने 1 2 3 4 5 कुछ पॉइंट्स दे दिए. देन वी केम टू मेन हेडिंग 2 विच वाज ऑफ आर्किटेक्चर, है ना. अब आर्किटेक्चर वाले में हमने एक तो टेम्पल एक्सप्लेन कर दिया. लेट्स टेक इट बियॉन्ड दैट, ठीक है. लेट्स टेक इट बियॉन्ड दैट, टेम्पल के बियॉन्ड लेके जाते हैं. टेम्पल के बियॉन्ड सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज द पैलेसेस, है ना. जिनको क्या है, रॉयल रेसिडेंस ऑफ द किंग्स, रॉयल रेसिडेंस ऑफ द किंग्स. देन द सेकंड दैट यू कैन टॉक अबाउट आर द अदुलास. वेरी इंपॉर्टेंट, द अदुलास. ये क्या थे, ये थे हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग द चोला रेन, राइट. इसमें दिखा भी सकते हो आप, कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक welfare. Then you can also go beyond and you can talk about the educational institutions, education institutions attached to temples, attached to temples, ठीक है. You can also talk about the ports, you can also talk about the ports. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ports में क्या क्या आ जाएगा, हमने यूपीएससी के उसमें पढ़ा है ना. we have studied it, we have the ports वाला जो पूरा का पूरा concept है, studied it in the prelims, for prelims as well. the पोम्पुहर पोर्ट, है ना, द पोम्पुहर पोर्ट, द नागपट्टिनम पोर्ट, इन नागपट्टिनम पोर्ट, राइट. You can talk about the ports as well. Clear? Then they were maritime infrastructure other than ports as well. The maritime infra, इसी बार पूछा ना यूपीएससी ने कि भाई कौन जाके मलय पेनिनसुला जीत लाया. Yes, so that was Cholas only ना. तो Cholas ने क्या किया था, they had very dominance, very much dominance in the marine part. So they had warehouses, they had docks, they had lighthouses made, ये सब चीजें they had, ठीक है. Then in the terms of in the terms of architecture you can also mention regarding dams for irrigation. और इसमें आपका क्या पॉइंट आ जाएगा, the point that will come here will be of the Kallani Dam for agriculture and irrigation. Yes, you can mention about dance and literature in the art part also, है ना. यहाँ पे स्कल्पचर वाला आ गया जो बाकी आए. फिर आप इसमें आप फर्दर मेंशन कर सकते हो डांस के बारे में, फर्दर मेंशन कर सकते हो लिटरेचर के बारे में. यस, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. सो दिस इज हाउ यू विल डील विद द एंटायर क्वेश्चन. बात समझ में आई सबको. हाँ, बाकी आपके पास जो भी एग्जांपल्स, यू कैन यूज देम ऑन योर ओन. क्लियर, अंडरस्टूड. So the next question that we want to discuss with you was this one. They estimate the contribution of Pallavas of Kachi for the development of art and literature of South India. Now, the word given here is estimate. अगर ये पे word क्या होता है evaluate, तो डिफरेंट हो जाता आंसर. जब वो होगा तब बताऊंगा. अभी के लिए एस्टिमेट कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को. हाँ, तो मेरी आंसर राइटिंग के लेक्चर्स कभी ऐसे होते ही नहीं है. सी, आई ऑलवेज बिलीव इन कीपिंग इट वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड. क्या सीन है, देखो, मान लो जो ये आइडियल आंसर, जो ये मॉडल आंसर्स हैं, दिस हैव बीन रिटन बाय समबडी हु स्कोर्ड 100 एंड क्या 14 वगैरह इन जीएस 1, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स, ठीक है. अब इस इंसान ने जो लिख दिया उस पे मेरा अपना क्या ओपिनियन है, that I'll always give, even if it means going beyond and even sometimes going against the model answer. तो वो मैं हमेशा करूंगा. I'll always do that. ठीक है, got it? Okay, let us have a look. बस आपको ये make sure करना है that you are attending the lectures and you are writing down everything that I'm saying, every single thing that I'm saying. उसको बोलते हैं फिर कॉनकर को फॉलो करना, कि जो बोल दिया वो कर रहे हैं सर. Now, what is the introduction here? The Pallavas of Kanchi. ये टाइम पीरियड हो गया, played a pivotal role in shaping the South India's art and literature. ठीक है. Art, architecture, literature laying the foundations for later dynasties like the Cholas. Their contributions have been very instrumental in defining Dravidian cultural landscape. तो उनका हमने significance बता दिया, हाँ, timeline बता दिया, ठीक है, influence बता दिया, और long term contribution बता दिया. Enough? हो गया question address? So contribution development of art. Let us have a look. अब यहाँ पे क्योंकि architecture को अलग से नहीं करना था, so what we'll do is we'll include the architecture वाला part in the art itself. तो temple architecture जो 4 stages में कल मैंने पढ़ाया था ना, वो as it is आपका यहाँ पे use हो गया. Stage 1 rock cut temples, Mahendravarman वाले at Mandagapattu.
यूज नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस टू कार्व टेम्पल्स ऑफन विद पिलर्ड हॉल्स एंड सैंक्टम्स। बात समझ में आ गई। स्टेज 2 इज फेमस पंचरथ एट द महाबलीपुरम अंडर द नरसिम्हम 1/1 resembles chariots and represent different architectural prototypes, कल ही पढ़ाइए। Then stage 3 structural temples under the Rajsimha, example the Shore temple of Mahabalipuram and the Kalashnar temple of Kanchipuram। अब ये सबसे ये कौन सी स्टेज आई थी? That this was a stage when proper structuring of temples happened। मैंने इससे पहले बताया था ना आपको कि यहाँ तक क्या हो रहा था, रॉक कट यहाँ पे उसको रद्द कर दिया और यहाँ पे एक्चुअली में टेम्पल फॉर्म शुरू हुआ। स्टेज 4 वॉज टेम्पल्स अंडर नंदीवर्मन, जो कि हमने कल डिफरेंटली पढ़ा था। बात समझ में आ गई? तो ये मैं आपको कल समझाया था, याद है? दैट यू कैन यूज अ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द आर्ट ऑल्सो। भाई वो भी आर्ट ही है, उसपे भी कार्विंग हो रही है, राइट? सो वो भी आर्ट ही है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट यू नो हाउ टू यूज, है ना? तो आर्किटेक्चर अलग से नहीं दिया तो हम यूज कर लेंगे भाई आर्ट में। चलो फिर नेक्स्ट क्या आपका मुराल्स या फिर म्यूरल्स, इलेबोरेटेड वॉल, सीलिंग, पिलर पेंटिंग, ये सब पेंटिंग जो मुराल पेंटिंग होती है। एग्जांपल हो गया महेंद्र वर्मन पैट्रोनेज फॉर मुरल्स एट द पल्लावरम। कैलाशनाथ टेंपल म्यूरल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अजंता ट्रेडिशन डिपिक्ट्स रिलीजियस थीम्स एंड कोर्ट लाइफ। तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके, हमने बता दिया जिसमें पहले कह रहा था ना आपको, एज आई वाज टेलिंग यू इन द लास्ट लेक्चर, दैट मेंशन the dimension, mention the argument, mention the example, dimension, argument, example। और सिंपली याद करना है तो डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट, सब्सटेंशिएशन, दास, ये आप याद कर लो। It become very simple. Understood everybody? Clear? Then sculptural innovation, scenes from महाभारत, रामायण, वो टेम्पल वॉल्स पे दिखते हैं। डिसेंट ऑफ गंगा जी दिखती है अर्जुना का पेरेंट्स से, तो इसको द पल्लवा लायन मोटिव्स इन टेम्पल पिलर्स रिकरिंग सिंबल ऑफ द दिव्य आर्किटेक्चर, इसको भी एक अलग पॉइंट बना दो। मेक एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। एग्जांपल, यू विल सी टॉपर्स हु हैव रिटन 12-13 पॉइंट्स इन अ 10 मार्कर by making points out of examples only। तो कभी चूकना नहीं है उससे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, क्या कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में? प्रमोशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर, महेंद्र वर्मन ऑथर द संस्कृत प्ले मत्तविलास प्रहसना, अ सैटारिकल फार्स क्रिटिसाइज रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड सोशल डेकेडेंस। ये इसी बार का पीवाईक्यू बन गया, अब तो चलो ये 2025 का। ओके, देन दंदिन ऑथर्ड, ये एग्जांपल हो गया आपका। भारावी ने क्या लिखा वो एग्जांपल हो गया। तमिल लिटरेचर कैसे प्रमोट हुआ, इंस्क्रिप्शंस में क्या था, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में क्या था, एजुकेशनल में क्या था, कल्चर में क्या था, ऑल ऑफ दीज आर नाउ योर एग्जांपल्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर अ फ्रेमवर्क नाउ, टाइम फॉर अ फ्रेमवर्क। चलो लेट्स मेक अ फ्रेमवर्क। कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टू वाई, या फिर वाई की जगह लिख सकते हो AAL, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। ठीक है, 2 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम मैथ। कोई भी आपको क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनते जाना और बनाना टेम्पलेट, ठीक है? एनी क्वेश्चन दैट यू गेट वेर यू आर आस्क्ड कि सर चोलास का कंट्रीब्यूशन बता दो इस पे, पल्लवास का बता दो उस पे, चलो क्यास का बता दो तीसरे पे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई एंड हैव अ लुक कि भाई किस तरीके से वी कैन फ्रेम दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेट अस नाउ ट्राई एंड हैव अ लुक एट दैट, उसको देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट आर्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ XYZ टू आर्ट, क्या होगा वो? उसमें किस किस चीज का आर्ट हो जाएगा? द आर्ट contribution of X to the art of sculptures, ठीक है? The art of dance, the art of paintings, the art of music, the art of theater, ठीक है? और हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या क्या देखा? इवन स्कल्पचर लिखा मैंने, हाँ स्कल्पचर तो लिख दिया, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट here also you can divide this entire thing into 2 dimensions, the visual art and the performing art. So how will it become? This entire will change now to art की एक heading, art के अंदर एक heading of visual art and art के अंदर दूसरी heading of performing art, visual art and performing art। समझ में आई बात? तो जैसे मान लो थिएटर है, वो क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट है। म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट है ना? डांस परफॉर्मिंग आर्ट है। पेंटिंग कैन स्टिल बी पुट इन द विजुअल आर्ट, स्कल्पचर्स कैन बी पुट इन द विजुअल आर्ट। और इसमें क्या आ सकता है? पोट्री, ठीक है? मेटलर्जी, कॉइनेज या न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं कॉइनेज को, न्यूमिस्मैटिक। बात समझ में आया? ठीक है। सो नाउ यू डोंट नीड टू राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन एवरीथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, यू टू राइट सम ऑफ दीज पॉइंट्स इन एवरीथिंग। गॉट इट? व्हाट कैन बी फर्दर डायमेंशंस टू दिस? और डायमेंशंस देखते हैं, ये हटा दूं, विजुअल परफॉर्मिंग यहां से हटा दूं, और क्या डायमेंशंस देख सकते हैं इसमें? एक सेकंड को नीचे लिख देते हैं ना इसके, एक सेकंड रुको। पोट्री, मेटलर्जी और न्यूमिस्मैटिक किया है ना हमने अभी तक, पोट्री, मेटलर्जी, न्यूमिस्मैटिक। और बताओ और आर्ट्स में क्या लिख सकते हैं पता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंटेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडस वगैरह के टाइम का लिख दोगे आप, सील्स। समझ में आया? क्लियर? गॉट इट? इनफ? So these are the dimensions. Now please understand what I'm telling you. Now please understand what I'm telling you.
very important thing that I'm going to tell you. You will never have enough content. चाहे आप जिंदगी में कितना ही पढ़ लो, पहले लेक्चर में बोल रहा हूँ ये चीज बहुत कंट्रोवर्शियल है, आप कितना भी पढ़ लो, you read any amount of books, anything, you will never have enough content to answer every question. Does that mean that you will leave your answers in the examination hall? No, sir. What will you do, sir? You will try to convince, after you have written your best points, then you will try to convince the examiner that yes, you know about the other things as well, even if you're not able to remember or recall the example at a particular moment. ठीक है ना, हो सकता है ना चोलास का न्यूमिस्मैटिक आर्ट में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट व्हाट डू वी हैव इन जनरल, व्हाट डू वी नो दैट कोई भी किंगडम जब न्यूमिस्मैटिक करेगा, कॉइनेज करेगा, तो कैसी करेगा? जो कॉइनेज है, इट विल बी अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, इट विल बी अ सिंबल ऑफ ट्रेड, इट विल बी एन एक्सीलेंस ऑफ सम काइंड ऑफ मेटलर्जी. बात समझ में आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है, अंडरस्टूड. द अदर थिंग्स दैट कैन बी एडेड इन अ सर्टेन पॉइंट इज, जो आप फर्दर आर्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, दे आर थिएटर या थिएट्रिक्स, दे आर martial art, folk art, which becomes very important sometimes. अब understand this, that I'm not saying कि भाई ये सब कुछ हर जगह अप्लाई हो जाएगा. I'm not saying that. Okay, I'm not saying that everything will be repeated everywhere. What I'm saying is that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 out of these more than a dozen points, even if you're able to link 5 to 6 points to a particular kingdom, you will be sorted na. Understood? Clear है? Now on a similar lines, let's see आर्किटेक्चर. अगर पूछता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जी टू आर्किटेक्चर, देन व्हाट कैन वी राइट? सबसे पहले तो वही आ जाता है, केव आर्किटेक्चर. यू आर सीइंग दैट इन द पल्लवास एटसेट्रा एटसेट्रा ना, तो केव आर्किटेक्चर. इसमें क्या क्या है सर? फर्दर प्री हिस्टोरिक, अगर कोई केव्स हैं तो, मैन मेड कोई केव्स हैं तो, है ना, रॉक कट केव्स हैं तो. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स डाउन इज टेम्पल आर्किटेक्चर, राइट? टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है सर? टेम्पल आर्किटेक्चर में आ जाता है सर फर्दर आपका the evolution, the stages, the style, है ना, the USP of a certain era of the temple architecture. USP जैसे कि हमने चोलाज में देखा ग्रैंड गोपुरम्स, ये वो, हमने पल्लवाज में देखा रथ. गेटिंग माय पॉइंट? देन इफ आई मूव अहेड वी कम टू स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स हालांकि हमने आर्ट में भी लिखे, बट मान लो स्कल्पचर आर्ट में ना लिखा हो तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में लिख लेना, ठीक है. पॉटरी एंड सील कैन ऑल्सो कम हियर वैसे तो, बट उधर नहीं लिखा हो तो उधर लिख लेना. देन अ मेजर थिंग दैट कम्स इज स्तूपास. A major thing that comes is pillars. Major thing that comes are monuments. अभी मैंने क्या बताया था आपको? Palaces. Then what did I talk about? Inscriptions. एक कीवर्ड होता है public utility buildings. क्या मिलेगा public utility buildings में? Schools, hospitals. बात समझ में आया? Then you can talk about ports. मतलब maritime basically. Maritime architecture. इसके अंदर further you can talk about ports, you can talk about dockyards. Okay, what you can talk about? Ports, dockyards. और किस चीज के बारे में बात कर सकते हो यहाँ पे? लाइट हाउसेस, वेयर हाउसेस. जैसे आपने बोला कम्युनिटी हॉल सेंटर, वो तो यहाँ पे आ जाएगा, कम्युनिटी हॉल सेंटर. बात समझ में आई? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू मूव अहेड विद द आर्किटेक्चर वाला पोर्शन. सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट. कम से कम 10 पॉइंटर्स इसमें भी हो गए हमारे पास, है ना, और कम से कम 10 तो एटलीस्ट इसमें हो ही गए, इवन इफ नॉट 12 13. हाँ, तो जैसे मान लो कोई ग्रैंडरी बोल रहा है, तो ग्रैंडरी विल कम अंडर हेयर, ग्रेट बाथ विल कम अंडर हेयर, है ना, ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर मॉन्यूमेंट. ये किसी तरह की मॉन्यूमेंट है ना. यूएसपी होता है उसका, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक मतलब उस पर्टिकुलर एरा में सबसे यूनिक क्या था टेम्पल आर्किटेक्चर में. सबका कुछ यूएसपी होता है ना, वैसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोलते हैं इसको, यूएसपी को. हाँ, मंडपास तो इसी के अंदर आ जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर ही मंडपास आ जाएगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ में आया? डू वी हैव क्लैरिटी ओवर दिस नाउ? हाँ, करेक्ट करेक्ट. सिटी प्लानिंग कैन आल्सो बी वन. सही बात है, सिटी प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग कैन आल्सो बी वन. सिटी प्लानिंग कोमा अर्बन प्लानिंग. एक रोड्स हो सकता है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, रोड्स का बना लो, एक रोड्स हो सकती है. जैसे खासकर आईवीसी वगैरह के टाइम पे वो बात करते हैं ना, परपेंडिकुलर रोड्स, 90 डिग्री इंटरसेक्शन एटसेट्रा. गॉट इट? बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो आप अपनी तरफ से ऐड करते रहना कभी भी जब भी आपको कोई नई चीज मिले. जैसे आपको जब मॉडर्न पढ़ोगे तो फोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, है ना, तो ऐसी चीजें आप अपनी तरफ से ऐड करते रहना इन द आर्किटेक्चर पोर्शन इटसेल्फ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, द आर्ट इन द आर्किटेक्चर पोर्शन. चलिए फिर, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स नाउ. आर्ट आर्किटेक्चर देख लिया, लिटरेचर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लिटरेचर का मैडम तब देखेंगे, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू बिल्ड कंटेंट. सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ रहा है? We read the content, we augmented the content during the lectures, we discussed the structure of the answer, and then through MAD we discussed how to increase the dimension, points and arguments in the answer. Super over.
चलो ठीक है, समझ में आया सबको तो ठीक है, फिर we can move ahead. What we understand, we conquer.